Welcome friends to our YouTube channel. In today's video we are discussing about the electronic transition which are involved in UV visible spectroscopy. In last video we have discussed that there are three types of electrons such as sigma, pi and non-bonding electrons are there present in electron spectroscopy, and including that we have also discussed the principle of UV spectroscopy. So in after that we have to discuss that which are the different electronic transitions involved in UV visible spectroscopy. So let's one by one we will discuss the electronic transition present in UV spectroscopy. Why there is electron transitions are involved in UV spectroscopy? The simple reason behind that, there is UV spectroscopy is nothing but your electronic spectroscopy. Okay, electrons are involved when this particular molecule absorb the radiations. Okay, then bonding electrons are excited to an anti-bonding orbital. That's why these electronic transitions are involved. There are different possible electronic transitions in this particular UV spectroscopy. In that, first one is the pi to pi star transition, sigma to sigma star transition, n to sigma star transition, n to pi star transition. These are the four transitions which are practically involved in particular UV spectroscopy. But sigma to pi star transition and pi to sigma star transition, these are we can say that hypothetically involved, means they are not practically proved that these type of transition are involved in this particular UV spectroscopy. So what are differences? Pi to pi star transition means what? This pi is nothing but your bonding electron, and this pi star is your anti-bonding electron. This sigma is your bonding electron, and this sigma star is your anti-bonding electron. Okay, in that, sigma to sigma star, n to sigma star and n to pi star. Okay, sigma to sigma star, okay, n to sigma star and n to pi star, these are the allowed transition in UV spectroscopy, while this n to pi star transition, okay, this n to pi star transition is forbidden transition in UV spectroscopy. The energy level, we can say that scheme for the molecule in the energy level, in that n to pi star transition having the lowest energy and sigma to sigma star transition having the highest energy in UV visible spectroscopy. Okay, in that, first one, that is n to pi star transition having lowest energy. After that, the pi to pi star transition have the energy greater than this n to pi star. Then n to sigma star having the greater energy than pi to pi star, and sigma to sigma star having the highest energy. Okay, the highest energy is of sigma to sigma star, then followed by n to sigma star, then followed by pi to pi star, and n to pi star transition are there, which are practically involved in UV spectroscopy. And these two, that is sigma to pi star transition and pi to sigma star transition, ये जो transition है, these are हाइपोथेटिकली ट्रांजिशंस आर देयर. ओके, जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइपोथेटिकली आप बता सकते कि ए भी ट्रांजिशन हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली वो होते नहीं है. ओके, सो अभी इसके अंदर हमने देखा कि सबसे स्टार्टिंग पे क्या होता है, जो भी इधर जो बॉन्डिंग जो भी होता है ग्राउंड स्टेट पे सिग्मा होता है, और एक्साइटेड स्टेट में सिग्मा स्टार जाते हैं. वैसे ही जो स्टार की हुई जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, दीज आर द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. और उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे कि जो इनिशियली जो ग्राउंड स्टेट में होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में वो क्या जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है. ओके, तो पहला हम डिस्कस करेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. अभी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जैसे कि मैंने बोला कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो जो ऑर्बिटल है, फ्रॉम द ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू इट करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल. मतलब क्या कि ग्राउंड स्टेट पे अपना पाई इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो भी सिग्मा स्टार है उसमें वो कन्वर्ट होता है. एक्चुअली इसके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है. ओके, अभी जो यूवी वैक्यूम यूवी रीजन जो है, वैक्यूम यूवी रीजन में जनरली ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो हम डिस्कस करते हैं. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि सिग्मा जो बॉन्ड है, ओके, वो
एनर्जी बॉन्ड वहाँ पे होते हैं, ओके, इसलिए वो जनरली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी एब्जॉर्ब नहीं होते, वो वैक्यूम यूवी या फार यूवी रीजन जो भी है अपना बिलो 200 नैनोमीटर वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। अभी मीथेन जो है CH बॉन्ड रहता है उनके अंदर, ओके, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल है मीथेन लाइक मॉलिक्यूल वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दिखाते हैं, और वो जो एब्जॉर्बेंस है एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा 125 नैनोमीटर पे वो एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा अपने को दिखाते हैं, ओके। उसके बाद में जो सेकंड वन है दैट इज यूर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अभी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में सिंपली जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जैसे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, अभी पाई इलेक्ट्रॉन जो है ठीक है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं, उसके बाद में वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दैट इज पाई स्टार। अभी जो कंपाउंड रहते हैं कंटेनिंग लाइक मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक अल्कीन्स अल्काइंस, ओके, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिनमें होते हैं, ओके, लाइक हम यहाँ पे कार्बोनिल नाइट्राइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये जो मॉलिक्यूल है इट शोज दैट टाइप ऑफ ट्रांजिशन दैट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अभी इसके अंदर अगर अल्किन्स का देखेंगे तो अल्किन जनरली एब्जॉर्ब इन द रीजन ऑफ 170 टू दिस पर्टिकुलर 205 नैनोमीटर के ऊपर अपने को एब्जॉर्बेंस दिखाते। अभी इसमें कैसा होता है कि इथिलीन का अगर देखेंगे हम, ओके, अल्किन के अंदर इथिलीन का, तो इथिलीन का जो इंटेंस पीक है, इंटेंस पीक अपने को 174 नैनोमीटर पे मिलता है, ओके, लेकिन जो अगेन उसका भी पीक जो है वो अपने को 205 नैनोमीटर पे भी मिल सकता है, ओके, ड्यू टू इज पैथोक्रोमिक शिफ्ट। जब हम इसके बाद में जब डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म जो बेसिक डेफिनेशन उसके अंदर हम इसका डिफरेंस देखेंगे, ओके। जो नेक्स्ट ट्रांजिशन है अपना थर्ड वाला दैट इज N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ओके। अभी जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ओके, सैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन, ओके, जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन, जो ऐसे मॉलिक्यूल है वो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दिखाते हैं, ओके। अभी इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दे रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, मतलब उनको कम एनर्जी लगती है देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ओके। अभी इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप विथ सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इनके जो पीक्स होते हैं ये यूवी रीजन में वो दिखाते हैं, ओके। इन बिटवीन 150 टू 250 नैनोमीटर के अंदर ये जनरली पीक अपने को देखने को मिलते हैं, ओके। जो फोर्थ ट्रांजिशन है दैट इज N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, ओके। अभी जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है इसकी सबसे कम एनर्जी होती है, ओके। दिस इलेक्ट्रॉन्स शोज द अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल जो होते हैं, ओके, ये मॉलिक्यूल हम जनरली N2 पाई स्टार ट्रांजिशन दिखते हैं जो सबसे कम एनर्जी उसमें होती है, ओके। अभी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार की तरफ जाता है, जब N2 पाई स्टार में जब जाता है तो N नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने पाई स्टार ऑर्बिटल में वो जाते हैं। अभी इसके अंदर डबल बॉन्ड इन्वॉल्विंग हेटेरो एटम जो मॉलिक्यूल्स है, ओके, उसके अंदर डबल बॉन्ड जो होता है सच मॉलिक्यूल्स अंडरगो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन, ओके। अभी इसके अंदर सबसे कम एनर्जी लगती है, तो इसकी वजह से जो लॉन्गर वेवलेंथ की जो मॉलिक्यूल है शोज एब्जॉर्बेंट एट लॉन्गर वेवलेंथ अराउंड 300 नैनोमीटर, तो ऐसे मॉलिक्यूल जनरली दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स जनरली शो करते हैं, स्पेशली 270 टू 300 नैनोमीटर के आसपास जो मॉलिक्यूल है वो जनरली इस टाइप के जो भी ट्रांजिशन है वो दिखाते हैं, ओके। उसके बाद में जो अपने सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये जो है दीज आर द फॉरबिडन ट्रांजिशन हम इसको बोल सकते हैं, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली हम वो शो नहीं कर सकते। तो दस जो भी N2 पाई स्टार ट्रांजिशन या पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है जो शोज द एब्जॉर्प्शन इन द रीजन अबो 200 नैनोमीटर, ओके, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक्सेसिबल है, ओके, लेकिन दीज आर ऑल थ्योरेटिकल, ओके। एंड इसके अंदर क्या होता है कि फ्यू ब्रॉड ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब यूवी स्पेक्ट्रम जो है इज ऑफ ओनली अ फ्यू ब्रॉड ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब खूब बहुत कम एब्जॉर्बेंस इसके अंदर मिलता है, लेकिन एक्चुअली दीज आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। जो इम्पोर्टेंट है अपने जो फर्स्ट फोर हमने जो ट्रांजिशन देखे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड N2 पाई स्टार ट्रांजिशन विच आर प्रैक्टिकली पॉसिबल, ओके।
तो वो हमें इस वीडियो में हमने जनरली वो डिस्कस किया। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज विच आर द डिफरेंट टर्म्स यूज इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जैसे अभी व्हाट इज इन बाय क्रोमोफोर, व्हाट इज इन बाय ऑक्सोक्रोम, व्हाट इज इन बाय बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, उसके बाद में हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये सब हमें कहाँ पे डिस्कस करते हैं, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस particular electronic transition, please like this video, okay, share and subscribe for more important videos related to this UV spectroscopy. Okay, thank you friends for your kind attention for this video.